and welcome to this very special show on NDTV 24/7. We are counting down to the Summer's Olympic Games, which will be played in Rio de Janeiro. Joining us in our studios are 5 members of that Indian contingent. It is going to be India's biggest ever contingent at the Olympic Games. We'll introduce them straight away. We have boxer Shiva Thapa with us, the Indian hockey team Sardar Singh. We have Babita, she's a wrestler, Avtar Singh, judoka, and a shot put star, Inderjeet Singh. We've also got a host of audience members here with us who will also get their chance. But if you want to cheer for members of the Indian team traveling to Rio, you can log on to hashtag Namak Ke Vaste and do send in your cheers. All of them are definitely going to count when all these guys go to Brazil. Let me start with you, Shiva. You and Sardara, the two of you are the Olympic not veterans, but you all were there in London as well. From last time around, you were the youngest boxer to qualify. Yes. You're still very young, but this time around, how has your Olympic journey been from London to Rio? And also this time around, you're not going to have too much company around in that dressing room. Yeah, little bit lonely. Yeah, that's true, and definitely, it's been a massive last 4 years. They say time flies. That's what's happened. It just seems like last 4 days. Since last London Olympics happened, and the journey has been fantastic. I've been taking part in a lot of major events like Asian Games and Commonwealth Games, and recently at the last World Championship, where I won a bronze medal. I nearly missed a chance for the Rio, but God willing, I qualified from the Asian Olympic qualifiers by getting a silver medal. The boxing dressing room is going to be a little empty, but you can't say the same perhaps about the other teams. Sardara, last Olympics में we finished last out of the 12 teams. This time booking हमारी सबसे पहले हो चुकी थी. But what do you say about your preparation, especially because हमारा group जो है काफ़ी tough है. अच्छे ट्रेनिंग सेशन किए हैं जो आजकल की मॉडर्न हॉकी में रिक्वायरमेंट है, और मैं कहूँगा कि लड़के एवरी ट्रेनिंग सेशन में अपने आप को ग्रो कर रहे हैं. तो मैं कहूँगा कि एशियन गेम जीतने के बाद या लोगों की अभी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ी हैं हॉकी से, और टीम काफ़ी अच्छा कर रही है, और मैं कहूँगा कि टीम एक राइट ट्रैक पे चल रही है. बबीता, मुझे पहले तो आप बताइए कि जब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की खबर मिली, आपका रिएक्शन कैसे था? बिकॉज अबाउट 2 weeks बिफोर दैट आपको शो कॉज नोटिस दिया गया था क्योंकि आपने एक बाउट फॉरफीट किया था. फिर उसके बाद इन 2 weeks हाउ डिड योर लाइफ चेंज? मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मैंने बाउट जो नहीं खेली थी उसका एक रीज़न था, क्योंकि 1 हफ्ते बाद मेरा दूसरा क्वालिफाई राउंड था. तो मैं रिस्क नहीं उठाना चाहती थी, क्योंकि अगर वो बाउट खेलती शायद मुझे इंजरी हो सकती थी. अगर इंजरी हो जाती तो मैं नेक्स्ट 1 हफ्ते में तो मैं रिकवर भी नहीं कर पाती. तो मैंने ये सोच के मैंने बाउट नहीं खेली थी. टर्की में टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ पे हमारे कोचेज हैं, उनके कोचेज से और उनके जो प्लेयर हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि हाँ, जो 1 था वो पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन B का भी कंफर्म नहीं हुआ है. तो कहीं ना कहीं उम्मीद थी मुझे इस चीज़ की. आप कितना रिलीव्ड हुए जब आपको कुछ दिन बाद पता चला कि हाँ मैं रियो जा रही हूँ? हाँ, तो मुझे ही नहीं, पूरे परिवार को इस चीज़ की काफ़ी खुशी हुई कि मेरा रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हो चुका है. क्योंकि जिस चीज़ मेहनत जिसके लिए हम लगे हुए थे, वो आखिर कहीं ना कहीं वो उम्मीद थोड़ी पूरी हुई है. लेकिन मेडल के लिए लगे हैं, तो हम अपनी मेहनत कंटिन्यू कर रहे हैं अभी कि हम ओलंपिक में काफ़ी अच्छा कर सकें. ओके. अवतार सिंह, आप पहले भारतीय जूडोका हो जो 12 साल के बाद क्वालिफाई किए हो. सो मेनी कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट. दैट्स अ माइलस्टोन. टेल अस अ लिटिल बिट आपके जर्नी के बारे में, क्योंकि ओलंपिक क्वालिफिकेशन जूडो जैसे स्पोर्ट में 12 ईयर गैप के बाद इज क्वाइट समथिंग. व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट सैक्रिफाइस जो आपको करना पड़ा है? सेक्रीफाइस तो बहुत सारे हुए थे, लेकिन जो कहते हैं ना कि जो याद रहते हैं वो बता दूंगा कि अभी 1 साल पहले कुछ भी पता नहीं था हमें कि हम क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे. और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि टीम में भी नहीं थे और कैंप में भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था. फिर धीरे धीरे सब ठीक होता गया. तो फिर हमने ट्रायल्स में अच्छा किया. फिर अभी जब हम गए खेलने क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट्स में, तो उनमें भी धीरे धीरे अच्छा, और ट्रेनिंग करने गए बाहर, ट्रेनिंग भी अच्छी. तो जूडो ऐसी गेम है कि अगर आपके पास इंस्पायरिंग पार्टनर्स अच्छे नहीं है ना, तो आप ग्रो कर ही नहीं सकते. So the stress on training abroad is something that a lot of Indian athletes do, and I think Inderjeet Singh is going to vouch for that. Inderjeet, 2015 आपके लिए एक माइलस्टोन ईयर रहा. ऑलमोस्ट एवरी अदर वीकेंड आप गोल्ड मेडल जीत रहे थे. डिस्पाइट दैट आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा टू गेट फंड्स दैट यू वर एंटाइटल्ड टू. Tell me a little bit about that struggle, and now
फंडिंग आपको मिली है कि आपको अभी भी नाउ इज द लास्ट स्टेज टू प्रिपेयर फॉर द ओलंपिक्स? इज योर प्रिपरेशन ऑन ट्रैक? आज आपके सामने बैठा हूं तो कहूंगा कि लास्ट ईयर मैं खुद चाह रहा था कि ओलंपिक क्वालिफाई करूं सबसे पहले, क्योंकि हमारे खेल में आप जब अच्छा करते हो तब भी चीज़ें उस तरह से दिखाई नहीं जाती और आपको अपनी पहचान बनानी पड़ती है। तो लगातार मैंने लास्ट ईयर 11 कंपटीशन खेले, 2 अनऑफिशियल्स थे, 9 जो थे नेशनल और इंटरनेशनल थे, जिसमें 5 इंटरनेशनल खेला और हर जगह मेरे गोल्ड मेडल थे। 6 नए रिकॉर्ड थे। तो मैं इसलिए कर रहा था ये चीज़ों को, हालांकि मुझे उससे नुकसान हो रहा था, मैं एग्जॉस्टेड हो रहा था, मुझे पता था कि इसके बाद आगे रियो है और मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हूँ, पर मैं इसलिए कर रहा था कि मेरे लिए चीज़ें आसान हो जाए जो कि पहले नहीं थी। तो ये थोड़ा स्ट्रगल तो रहा ही, और मैं इसीलिए अच्छा कर रहा था कि मुझे बार बार अच्छा करना है और एक अपने लिए भी एक स्टेज तैयार करना है कि हम ओलंपिक में जाके भी अच्छा कर पाए। ओके।